welcome to my channel JEE Learn Mathematics, and this is the name of my institute, JEE Mantra, and the website is www.jeemantra.co.in. Anyone want to take the admission of class 8 to 12, then please ping me on itjmantra@gmail.com or call me on my mobile number, and everything is mentioned on the website. Uh, JEE Advanced Paper 1 Chemistry, how to deal with it. The first questions they asked in the consider the following list of reagent, that is acidified potassium permanganate, alkaline potassium permanganate, acidified potassium chromate, and alkaline potassium permanganate, copper sulfate, hydrogen peroxide, chlorine, ozone, ferric chloride, nitric acid, and sodium thiosulfate. The total number of reagent that can oxidize aqueous iodide to iodine. And we will left it with sodium thiosulfate नहीं होगा because that reverse वाला केस होता है इसमें. एंड बाकी का आपको सब ऑलमोस्ट सब होगा. पोटेशियम क्रोमेट अल्कलाइन के NO4 होगा, कॉपर सल्फेट होगा, H2O2 होगा, क्लोरीन होगा, ओजोन होगा, FeCl3 होगा और HNO3 होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is asked from the they are asking from the isomeric alcohol. तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो नहीं होगा, उसको सब हटा के हम लोग सब कुछ कर लेंगे. देखो दे आर आस्किंग अबाउट दिस इज द केस ऑफ द ब्यूटानॉल. तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो आइसोमेरिक केस में होगा, तो टर्ट ब्यूटानॉल इज देयर एंड द 2-methyl propane to all. मिथाइल में ग्रुप. अच्छा, वन डाई मिथाइल इथेन. तो इथेन में 1 and 1 ऑल. तो कैसे हो जाएगा, इथेन में हम लोग अगर एक पोजीशन में 2 CH3 दे देंगे एंड 1 OH देंगे, तो ये हमारा डाइथाइल इथेन. तो ये कितना कार्बन हो गया, 2 डाई मिथाइल इथेन है ना. तो 2 एंड 2 4 कार्बन है, 1 ऑल है. तो ये वाला केस जो है हमारा आइसोमेरिक फॉर्म. और टर्ड ब्यूटेनॉल तो दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना. टर्शियरी ब्यूटेनॉल में भी यही होगा हमारा CH3 एंड OH ऐसा हो जाएगा. तो वही का केस हो गया. तो B इज डिस्ट्रक्टेड एंड द रेस्ट ऑल अदर विल बी द ऑप्शन. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल देखो 2-methyl propane 1 ऑल होगा. Now the question is from the hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a very important part of the organic chemistry as well as the inorganic chemistry. As we all know, there are two types of hydrogen bonding: intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. And there are so many types of the question asking from the orthonitrophenyl, paranitrophenyl, why they are more acidic and like that. So the same type of questions here they asked. And that is the hydrogen bonding plays an central role of the following phenomena. तो कौन कौन सा वो फेनोमेना होगा. तो आइस फ्लोट्स इन वाटर, करेक्ट. हायर लेबिस बेसिसिटी ऑफ द प्राइमरी अमीन देन टर्शियरी अमीन, aqueous solution is the correct. And formic acid is more acidic than acetic acid. This is incorrect. कैसे कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे, ये दिस इज नॉट द फेनोमेना ऑफ hydrogen bonding. And dimerization of acetic acid in benzene is the phenomena of hydrogen bonding. Formic acid due to the electromeric effect के कारण होता है, नहीं कि hydrogen bonding के कारण होता है. And the next question from the JEE Advanced, they asked from the electrochemistry. आपका JEE मेन नज़दीक है, तो JEE मेन में जो पुराने JEE एडवांस या JEE IIT JEE जब पुराने ज़माने के होते थे, उसमें से मोर एंड लेस बहुत सारे क्वेश्चन सबको सेम मिलेंगे. इन्हें गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज है ना. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है. तो डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकल इन द सेल रिएक्शन इज द करेक्ट. And stop the diffuser of ion from one electrode to another is a correct, and is necessary for the occurrence of the cell X. Ensure mixing of the no. They don't have the role for mixing of the two electrolyte solution. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने बनाया हुआ था,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन है। इसका बहुत सारा अच्छे अच्छे वीडियोस है जो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप जाके देखिएगा। सेम क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ, इवन की स्टूडेंट्स आर कमेंटेड सो मेनी टाइम्स से मैम सेम क्वेश्चन आया। जस्ट यू विजिट माय यूट्यूब चैनल एंड सी द upon heating with cuprous sulfide the reagent that give a copper metal is R, कौन सा देगा? तो CO2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इवन की क्लास 10th में ये भी रिएक्शन सर आई रिपीटेडली टोल्ड द स्टूडेंट कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सो मेनी टाइम्स इन IIT JEE। तो Cu2s plus 2C2S6 copper and sulfur, the same reaction is in a class 10th NCERT book. If you want to see, then you can go and see these reactions. And the correct statement for the orthoboric acid क्या क्या है? तो it behaves as a weak acid in a water due to self ionization, नहीं। acidity of its aqueous solution increases upon addition of ethylene glycol, yeah, it's correct। and it is a big electrolyte in a water, yeah, it is also, it has a 3 dimensional associated, no, this does not happen due to the boron and hydrogen electronegativity difference and all। and properties of orthoboric acid we will already learn in the orthoboric का जब हम पढ़े थे तभी हमने उसको लर्न किया था। and the दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मैंने एक एक को अलग करके बताया आपको। फॉर द रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इज अ वैलेंस इक्वेशंस, कौन सा रिएक्शन आपका इसमें से सही होगा? इसके लिए तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि द करेक्ट वैलेंस इक्वेशन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है H2SO4 का। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन कौन ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से +6 है, -8 एंड +2, ये 6 है, ये -8 एंड +1 +7 है, तो ये +6 से +7 होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। फिर आप यहाँ पे देखिए आयोडीन का माइनस है, आयोडाइड माइनस से हमारा क्या बना कि आयोडीन बना, तो आयोडाइड माइनस से आयोडीन बना, तो हमारा क्या हो गया? माइनस से यहाँ पे ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए -6 एंड क्लोरीन का -1, तो यहाँ पे Cl है, तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर द क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन बॉन्डिंग से द पेयर ऑफ प्रेजेंट दैट इज द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज आर, कौन कौन से स्पीसीज हैं जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे? तो सोडियम एंड द पेयर ऑफ इल्ड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, इसको याद ही कर लीजिए बिकॉज हो सकता है इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको ऐसे करके आ जाए। एंड द सोडियम इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, एंड बी क्या हो गया? पोटेशियम एंड एक्सेस। दिस इज नॉट एन इजी टास्क टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो दैट यू हैव टू learn it from the PYQ, and PYQ the answers we either just go through and read the related concept and remember this। and the C is copper and dilute ammonia, oxygen to इधर ये नहीं हो। A list of species having the formula Z4 किस किस का होगा? तो हमारे पास कितने स्पेसीज हैं जिनके फार्मूला होंगे? तो 4 स्पेसीज है, XCF4 मतलब XZ4 वाला क्या होगा? BRF4 और CuNH3 तो +2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कॉपर +2 स्टेट में है, -4 ये प्लैटिनम +2 स्टेट में है। तो इन सब के फार्मूला एक्सजोड में, अब इसमें sp2 वो वाला भी होता है, DsP2 वाला भी होता है, बैक बॉन्डिंग भी होता है, ये सब कुछ है। तो वो हमें नहीं अभी देखना, जो हमारा पूछा जा रहा है वही बता। Inorganic, the among PVS, CUS, HGS, MNS, silver oxide, nickel oxide, cobalt oxide, bismuth sulfide, stannous sulfide, the total number of black colored sulfide कितने होंगे? तो there are 7 black colored, और black colored आप देखो अब क्या करूँगा, अब एग्जाम के लिए अब सारे black colored को याद कर लो, ब्लैक है। तो PVS, CUS, HGS, AG2S, NIS, CUS, ये जो कोबाल्ट का जनरली ऑरेंज होता है, तो कोबाल्ट सल्फाइड ब्लैक होता है, बिस्मथ सल्फाइड सिल्वर का जो होता है, सिल्वर सल्फाइड इज अ ब्लैक। आपने देखा होगा कि चांदी का चीज बहुत ज्यादा आप ऐसे यूज करते करते क्या हो जाता है, सल्फाइड के वजह से ब्लैक हो जाता है। मर्करिक सल्फाइड यूज हो जाता है, ब्लैक है। लेड सल्फाइड ब्लैक है। तो इसमें आपका निकल नहीं है, MNS नहीं है, पिंक आ जाता है उसमें। फिर इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आए थे, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रिएजेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, a compound H2X with a molar weight 8 ग्राम dissolved in solvent having a density इतना तो assuming तो आपसे पूछा क्या जाए मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, तो आपको वेट दिया, वेट इन ग्राम
बाई मॉलिकुलर वेट निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, एंड उसके बाद आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 4 ग्राम दिया है, फिर इन किलोग्राम में निकाल दिया, उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ मोल 3.2 आया। और उसके बाद 400 ग्राम ये आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट हो गया 3.2। एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ देखो 3.2 molar, assuming no change in a volume upon dissolution, the molality of a 3.2 molar solution is, मोलालिटी पूछ रहा है 3.2 मोलर सोल्यूशन में, तो वॉल्यूम हमारा 1000 ml है। मोलालिटी में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, 4 ग्राम में 0.4 से कर देंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉलिड 80 ग्राम दिया हुआ है। एक सेकेंड, H2X with molar weight 80 gram, having density 0.4। डेंसिटी है तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो हमें मास निकालना है, इसको वॉल्यूम से 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द मास इन 0.4 kg में। तो ये हो गया हाँ। और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, 80 ग्राम। वेट, मोलर वेट है 80 ग्राम इंटू 0.4 ग्राम, एंड 18 ग्राम कितना दिया हुआ है हमारा, मोलर वेट दिया हुआ है 80 ग्राम, डेंसिटी दिया हुआ है assuming no change in molarity of the solution, the molality of 3.2 molar। ओके, आपके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 3.2। मोल को क्या करते हैं हम लोग, बस उसके वेट से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो देन वी विल गेट द मोलालिटी ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा 80 ग्राम